Hello friends, welcome to my channel Code Destination. So as we are continuing this challenge one code one day, so we are taking the topic array and daily we are discussing one topic with full detail. So today we will take same topic array and we will choose one question from lead code problem number 209, which is called minimum size subarray sum. So we will analyze this question and we will find the brute force approach, how we can solve this question using the brute force approach, and after that we will think how we can optimize that solution in the very less time complexity. So let's start from reading the question. In the question we have given a one target and we have given a nums array. So it is mentioned that we have given an area of positive integer and a positive integer target. Return the minimum length of subarray whose sum is greater than or equal to target. So we have to basically return the size of the subarray, basically minimum size of the subarray. When we sum all the element of that subarray, that would be equal to the target. So the subarray is the you can see here the subarray is the contiguous non-empty sequence of element within an array. So subarray is nothing but a continuous element from this array. So in this example we can see we have given this number and the minimum size of subarray which is equal to the sum of the all the element of is equal to target is 2, because here we can see 4 plus 3 is 2, 4 plus 3 is 7, and the size of this subarray is 2, so it is returning here 2. And we can see in the same example we can see 3 plus 2 plus 1, 6 and 2. So this is not a solution. 4 plus 2 plus 1, so it is also 7. You can see 4 plus 2 plus 1 is also 7, but the size is 3. So we have two options, like one is of size 3 a subarray and another is a size 2 subarray. So we are returning the minimum size here 2. And in this example we can see the minimum size of the subarray is 1, either this 4 or this 4. So both are same size, so it is returning one size from here. So it is all about question. So चलते हैं, हम देखते हैं कैसे इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच में पहले सॉल्व करना है. तो जैसे हमने ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि हमें क्या करना है. हमें सारे सवेरे कैलकुलेट करने हैं और उन सारे सवेरे में से जिन सवेरे का सम इस टारगेट के इक्वल टू या ग्रेटर होगा उसके साइज़ को हम मिनिमाइज़ करते जाएंगे और लास्ट में उस मिनिमम साइज़ को रिटर्न कर देंगे. तो हम सेम अप्रोच को फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो मैं अपना फर्स्ट वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ. जैसे कि हमने क्या अप्रोच सोचा अभी, जैसे कि हम सभी स्टार्ट पॉइंट, सभी इंडेक्सेस को स्टार्ट पॉइंट मानेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि मैं अगर 0 को स्टार्ट पॉइंट मानूँ तो मेरा एलिमेंट जो होगा 2 + 1 + 8 + 9 = 20. So 20 is greater than target. Target is our 15. So ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमने साइज़ ले लिया 4. फिर यहाँ पे जैसे ही ये साइज़ ग्रेटर होता है तो हम यहाँ पे लूप जो हमारा 0th स्टार्ट इंडेक्स था वहाँ से हमने स्टार्ट किया था. अब उस स्टार्ट इंडेक्स से हमें दूसरा वैल्यू नहीं मिल सकता क्योंकि आगे जो भी वैल्यू होंगे वो हमारे ग्रेटर ही होंगे. तो हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज़ करना है तो हम इस साइज़ को मिनिमम करेंगे. तो 0th इंडेक्स के लिए हमें जो मिनिमम साइज़ मिलना था वो 9 तक मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जाएंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन टारगेट होगी, बट वो हमारा साइज़ मिनिमम नहीं होगा. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम साइज़ देना है. तो इसलिए हम 0th स्टार्ट पॉइंट के लिए केवल 3 इंडेक्स तक कैलकुलेट करेंगे जो 20 वैल्यू होगी. फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट देखेंगे जो हमारा 1 है. तो 1 से हम कैलकुलेट करेंगे 2 + 8 + 9 सो इक्वल टू 19. तो ये 19 हुआ, जो 19 15 से ग्रेटर है तो इसका मिनिमम साइज़ क्या हुआ, 3 हो गया अपडेट. इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं 19 + 20 तो ये ज़्यादा ही होता है उससे वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर है. तो यहाँ तक अगर वैल्यू ग्रेटर है टारगेट, लाइक 19 ग्रेटर है टारगेट से, तो उसमें अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा. तो उसे हम उसे केयर नहीं करते हैं, उसे हम उस इंडेक्स तक बस कैलकुलेट करेंगे.
तो यहाँ तक हमारी मिनिमम वैल्यू जो होगी 19 होगी और हमारा जो साइज़ होगा 3 होगा। तो हम वन इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स के लिए हम केवल 3 तक कैलकुलेट करेंगे। वैसे अगर स्टार्ट पॉइंट हमारा 2 हो तो हम 2 स्टार्ट पॉइंट के लिए 8 + 9 कैलकुलेट करेंगे। जो टारगेट हमारा है 17 है, जो गेटर है, तो इसका साइज़ 2 होगा। और इस केस में भी हम 20 को कैलकुलेट नहीं करेंगे कि हमें मिनिमम साइज़ देखनी है। और अगर हम 3 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो 29 होगा, तो यहाँ पर 2 मिनिमम साइज़ होगा। और अगर हम 4 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला एलिमेंट सबसे ज़्यादा है टारगेट से और साइज़ हमारा 1 है, तो ये हमारा मिनिमम साइज़ रिटर्न करेगा आंसर में, जो हमारा मिनिमम साइज़ होगा 1। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। हम पहले इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। सेम जो हमने एक्सप्लेन किया लॉजिक, कोड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर इंडेक्स को स्टार्ट पॉइंट मानना है। तो मैंने स्टार्ट ले लिया, तो मेरा जो इंडेक्स होंगे वो स्टार्ट पॉइंट मान लिया मैंने उसको। पूरे एरे में हमें इटरेट करना है, तो हमने यहाँ से इटरेट कर दिया। ओके, तो हम जो भी हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा उस स्टार्ट पॉइंट के लिए हम पूरे एरे में इटरेट करेंगे। तो मैंने एक लूप लगाया, जो हमारा एंड होगा हमारा उस स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और एरे के लास्ट एलिमेंट तक इटरेट होगा। तो यहाँ मैंने लिया और सभी स्टार्ट पॉइंट के लिए हम सम निकालते जाएंगे। तो इनिशियली हमारा सम फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट के लिए 0 होगा और जैसे जैसे हम उसे इटरेट करते जाएंगे उस स्टार्ट पॉइंट के लिए, तो हम सम में ऐड करते जाएंगे उस इंडेक्स के वैल्यू को, लाइक इस केस में नम्स ऑफ एंड। और जैसे इन बिटवीन अगर कभी भी हमारा सम जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, सम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट होता है, तो उसके बाद हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर ऐड भी होता है तो हमारा वैल्यू ग्रेटर ही होगी, बढ़ती ही जाएगी और हमारा साइज़ ही बढ़ता जाएगा। तो लेकिन हमें मिनिमम साइज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे अपना हम साइज़ को स्टोर कर लेंगे। तो मुझे साइज़ रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो मुझे रिटर्न करना है। तो मिन साइज़ ले लिया, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, मैक्स ले लेते हैं। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो स्टोर कर लिया मिन साइज़ में। फिर हम मिन साइज़ को यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। जैसे हमें कोई एक मिन साइज़ का सब एरे मिला जिसका सम टारगेट से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले मिन वैल्यू होगा और यहाँ पे साइज़ निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारा साइज़ जैसे ही ग्रेटर हुआ तो हम कैलकुलेट करेंगे साइज़ ऑफ सब एरे। साइज ऑफ सब एरे कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, 3 + 2 + 1 6 एंड 2 8 सॉरी 9, सो 9 हुआ, तो 9 ग्रेटर देन 7 है। तो इसका साइज़ कैसे निकालेंगे, हमारा स्टार्ट तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, बट हमारा एंड पॉइंट होगा किस इंडेक्स पे होगा, 0 1 2 3 इंडेक्स पे होगा। तो साइज़ 4 है, तो 3 - 0 + 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारा जो एंड इंडेक्स होगा माइनस स्टार्ट इंडेक्स और +1, तो इससे हमें साइज़ मिल जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूँगा अपने मिन साइज़ को, जो पहले मिन साइज़ था हमारा और जो अभी हमारा सब एरे मिला है उसके साइज़ से। अगर पहले वाला जो हमारा मिन साइज़ हमने पहले स्टोर किया था वो अगर हमारा ऑलरेडी मिनिमम है तो ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, बट अगर हमारा जो नेक्स्ट सब एरे मिला है वो मिनिमम है हमारे प्रीवियस मिन साइज़ से, तो ये मिन साइज़ को इस न्यू साइज़ से अपडेट कर देगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एंड माइनस स्टार्ट +1 साइज़ कैलकुलेट कर देता हूँ और ये जो साइज़ ऑफ एरे है इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो ये हमारा मिन साइज अपडेट हो गया और जैसे ही हमारा ये मिला हम इस ब्रेक को लूप कर देंगे कि हमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इस तरह हम सभी स्टार्ट पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते जाएंगे, हमारा मिन साइज अपडेट होते जाएगा। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, अगर हमारा मिन साइज सपोज़ अगर हमारा कभी ऐसे वैल्यू हो कि हमारा पूरा सम कर दिया मैंने, बट हमारा टारगेट से ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई कभी, ऐसा भी केस हो सकता है। जैसे कि सपोज़ मेरा अगर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, अगर मेरी एरे में जो वैल्यू है 1 1 1 है और हमारा टारगेट जो दिया है
वो अगर हमारा 5 है तो हम यहाँ पे सम करते जाएंगे 1 2 3, बट एक कोई भी केस एरे की इटरेशन के दौरान कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा जिसमें ये ग्रेटर देन 5 हो, क्योंकि ओवरऑल सम करने पे 3 आ रही है। तो ऑब्वियस है कि किसी भी सब एरे के लिए हमारी जो टोटल सम होगा वो ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, तो उस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो हम जहाँ चेक करेंगे तो इस केस में हमारा मिनिमम साइज अपडेट ही नहीं होगा। तो अगर हमारा मिनिमम साइज अपडेट ही नहीं होगा तो मिनिमम साइज की इनिशियल जो वैल्यू होगी वही होगी। तो हम इसको चेक कर लेंगे यहाँ पे, अगर हमारा मिनिमम साइज़ अपडेट ही नहीं हुआ है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, और अदरवाइज हमें मिनिमम साइज रिटर्न करना है। क्योंकि यहाँ मेंशन है अगर हमारा इफ़ देयर आर नो सच सब एरे सॉरी इफ़ देयर आर नो सच सब एरे रिटर्न 0। सो अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो हमें उस केस में 0 रिटर्न करना है, अदरवाइज मिनिमम साइज रिटर्न करना है। तो हम देखते हैं, इसको रन करते हैं हम। ओके, तो हम देख सकते हैं आप तीनों केस हमारा जो टेस्ट दिए थे वो सबमिट हो गए, और इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो इट इज़ गिविंग टाइम लिमिट एक्सीडेड। ये ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ये स्टार्ट जो पॉइंटर है ये लेंथ तक मूव हो रहा है, तो टोटल n इटरेशन होगा, और सभी 1 बाई 1 एक इटरेशन के लिए ये जो लूप एंड वाला है ये भी n इटरेशन कर रहा है, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ तक रन हो रहा है। तो टोटल हमारे n इंटू n इटरेशन होंगे। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा होगा वो हमारा होगा ओ n स्क्वायर होगा। तो ये केस हमारा जो हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये ओ एन स्क्वायर में सॉल्व करता है। तो इसलिए टाइम लिमिट एक्सिड दे रहा है, क्योंकि हमारा जो रेंज है नम्स डॉट लेंथ का वो 10 के पावर 5 है। तो 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5 हमारा क्या होगा, 10 के पावर 10 हो गया। सो 10 के पावर 10 इटरेशन नहीं कर पाएगा ये, तो इसलिए टाइम लिमिट एक्सिड दे रहा है। तो इसे हम देखते हैं कैसे इसे हम ऑप्टिमाइज मैनर में कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ जो सिंपली हम यहाँ पे डिस्कस किए। मैं इसे भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसे हम कैसे ऑप्टिमाइज मैनर में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ पहले। तो हम पहले क्या कर रहे थे यहाँ पे, पहले हम सभी इंडेक्स को स्टार्ट पॉइंट मानकर हमने क्या किया, सभी इंडेक्स को स्टार्ट पॉइंट मानकर हमने सब एरे का वैल्यू कैलकुलेट किया, और जैसे ही जिस भी पॉइंट पे ही हमारे सब एरे की वैल्यू ग्रेटर हुई तो हमने उसके मिनिमम साइज़ को स्टोर किया, और फिर उस पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट के लिए इटरेशन को स्टॉप किया। फिर नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट से इटरेशन स्टार्ट किया, और जैसे ही हमारा टारगेट की वैल्यू ग्रेटर हुई तो हमने उसे इटरेशन को स्टार्ट करके उसके जो न्यू हमारा जो साइज़ हुआ उससे अपडेट किया अपने मिनिमम साइज़ को। तो हमारा बेसिकली ये जो है मिन साइज़ है यहाँ पे जो हमने कोड में यूज़ किया था, तो हमारा ये मिन साइज़ हुआ। और इसको हम अपडेट करते गए, और हमारा लास्ट में जो मिन साइज़ हुआ वो मिनिमम साइज़ सबसे 2 आया, तो उसको हमने मिन साइज़ को आंसर में यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो हमने ये बेसिक अप्रोच फॉलो किया। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको पर्टिकुलर अप्रोच को एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अगर 0th पॉइंट से स्टार्ट किया था तो हमने ये सम किया था टोटल 1 + 2 + 8 + 9। तो हमारा टारगेट जो आया था वो आया था 20 इस केस में, और हमारा साइज आई थी यहाँ पे 4 आई थी, क्योंकि हमने n-*1 किया था। और फिर हमने जैसे ही हमारा एक ग्रेटर हुआ तो हमने यहाँ से इटरेशन स्टॉप किया इस स्टार्ट पॉइंट के लिए। फिर हमने नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट किया दूसरे स्टार्ट पॉइंट से। बट यहाँ पर और जैसे दूसरे स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखा हमने हमारा न्यू जो डेटा वैल्यू आया और 19 आया जो गेटर है। फिर हमने इसको अपडेट किया अपने साइज़ को, अगर मिनिमम वैल्यू आई 3 जो 4 से पिछली वाली मिनिमम साइज़ से कम है। इस तरह फिर मैंने जैसे ही ज़्यादा हुआ इस इटरेशन को स्टार्ट किया, फिर मैंने नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किया तो 8 + 9 यहाँ पे 17 आया। तो हमने सेम मैनर में इसको साइज़ को 2 आया तो इसको मिनिमम साइज़ को अपडेट किया 2 से। बट यहाँ हम देख सकते हैं कि हम जो स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमने अननेसेसरी जो कैलकुलेशन है ये वाली कैलकुलेशन इसको 2 बार किया है। 2 + 8 + 9 यहाँ भी किया है हमने, और 2 + 8 + 9 यहाँ भी किया है। तो इस इटरेशन को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेशन कर रखा है उससे अगर हम सेकंड वाले कैलकुलेशन को गेट कर पाएँ, जैसे कि मैंने पहले ही अगर मैंने स्टार्ट पॉइंट 0 से स्टार्ट किया है और 20 वैल्यू गेट कर लिया है तो मैं कैसे नेक्स्ट वैल्यू की ये वाला जो हमारा वैल्यू है गेट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली
मैंने जिस स्टार्ट पॉइंट से यहाँ स्टार्ट किया था, मुझे देखना है कि जो हमारा टोटल सम है ये 20, उसमें से मैं अगर जो हमारा प्रीवियस वाला सम जो स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था सम, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ, आई मीन जो हमारा स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैंने अगर इस एरे के वैल्यू को माइनस किया 1 को, तो हमारा ऑलरेडी ये 19 मिल जा रहा है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है ये भी अभी ग्रेटर है, जैसे कि 19 है, 19 भी ग्रेटर है। फिर मैं क्या करूँगा, सेकेंड जो हमारा वैल्यू है उसको रिमूव करूँगा, तो -2 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 17 मिल गया। तो बेसिकली हमें यही अप्रोच फॉलो करना है, हमें इस अननेसेसरी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे और एक एंड पॉइंटर लेंगे जो ये बताएगा कि हमें कहाँ से वैल्यू रिमूव करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैं अपना एक अप्रोच शेयर करता हूँ, जैसे कि बेसिकली हमारा स्टार्टिंग में क्या था, ये हमारा जो 0 से 3 तक एलिमेंट था इसकी साइज़ 4 थी। तो हमारा क्या था, हमारा जो ये विंडो की साइज़ थी 4 थी यहाँ पे, और हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर मैंने एक ले लिया है जो इंडिकेट करेगा कि हमारा कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन, और ये एंड पॉइंटर हमारे यहाँ तक इंडिकेट करेगा कहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर चुका है। तो मैंने जैसे ये स्टार्ट से एंड तक ये 4 एलिमेंट लिया, तो हमारा ये जो एलिमेंट टोटल सम आया 20 आया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो 20 यहाँ पे आया जो टारगेट से ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, साइज़ को अपडेट किया, तो साइज़ को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया सेम मैनर में। फिर मैं देखूँगा कि जो हमारा ये विंडो का साइज़ है क्या इसे रिड्यूस करूँ मैं, अगर विंडो के साइज़ को अगर 4 के बजाय अगर 3 करूँ, और मैं चेक करूँगा कि टारगेट से अगर वो ग्रेटर अभी भी है, तो ऑब्वियस है कि ये जो केस होगा, इस केस को लेने से क्या होगा, हमारा जो साइज़ होगा रिड्यूस होगा। पहले हमारा साइज़ 4 विंडो का था, तो हमारा ये 4 साइज़ था, बट अगर रिड्यूस करने पे भी ग्रेटर आ रहा है टारगेट से, तो ये साइज़ 3 होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट पॉइंट को मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक ये कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे कि इस केस में अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो ये मैंने स्टार्ट को यहाँ मूव किया, 3 आया, 3 अगर टारगेट अभी भी सम जो है टारगेट से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 3 साइज अपडेट होगा। फिर मैंने स्टार्ट पॉइंटर को और रिड्यूस किया, साइज हमारा 2 हुआ, और अभी भी अगर हमारा सम जो है टारगेट से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमने अपडेट करेंगे 2 साइज से, अगर इस विंडो के लिए ये अभी भी फुलफिल हो रहा है कंडीशन। और जैसे ही अगर हमारा जो टारगेट की वैल्यू है लेस होती है, सपोज मैंने इसको और मूव किया, स्टार्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे आया, और स्टार्ट पॉइंटर अगर यहाँ आया, हमारा 1 साइज हुआ, हमारा टारगेट से लेस हुआ, तो उसके इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमारा टारगेट से हमारा जो सम होता है लेस होता है, तो हम एंड पॉइंटर को मूव करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो एंड पॉइंटर मूव होगा, तो हमारा साइज़ क्या होगी, सपोज अगर ये प्रीवियस स्टार्ट पॉइंटर यहाँ होता, तो हमारा एंड पॉइंटर मूव होता, तो ये फिर 3 साइज आता। अब देखेंगे 3 साइज हमारा ये वाला सब एरिया है, क्या टारगेट से ग्रेटर है, नहीं है, तो लेस है। जब लेस है तो हम क्या करेंगे, अपने विंडो के साइज़ को और बढ़ाएंगे। तो मैंने और बढ़ाया, 4 आया साइज़। अगर इस विंडो साइज़ पे अगर देखेंगे, चेक करेंगे टारगेट की वैल्यू ग्रेटर है लेस है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ग्रेटर है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको अपने जो मेरा साइज़ वाला ये अब चल रहा है वेरिएबल, इसको अपडेट करूँगा। बट ये साइज़ हमारा ऑलरेडी हमें 2 साइज़ मिनिमम मिल चुका है, तो ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि साइज़ 4 है, तो हमारा यहाँ पर आंसर 2 ही हुआ। तो बेसिकली हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, एंड पॉइंटर से अपने सम निकालते जाएंगे, और जिस पॉइंट पे ही, जैसे इस पॉइंट पे जैसे ही सम हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट पे हमारा सम अगर ग्रेटर हुआ, तो हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे। फिर अपने स्टार्ट पॉइंटर को तब तक मूव करते जाएंगे, इट मीन्स हम तब तक अपने विंडो के साइज़ को कम करते जाएंगे जब तक हमारा टारगेट ग्रेटर हुआ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिनिमम साइज़ चाहिए उस सब एरे का जिसमें टारगेट जो ग्रेटर देन हो सम करने पे उस सब एरे की वैल्यू। तो हम इसे क्या करेंगे, अपने स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा। और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, आई मीन जैसे टारगेट से हमारा वैल्यू जो होती है सम की कम होती है, इट मीन्स जो विंडो में जो सब एरे, जो हमारा विंडो है साइज़, उसमें जो सब एरे हैं, जो एलिमेंट है, उसको सम करने पर अगर टारगेट कम आता है, तो हम क्या करेंगे, अपने सब एरे के साइज़ को बढ़ाने के लिए एंड पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। तो हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। अभी हम जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है 2 3 1 2 4 3। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मैंने 2 3 1 मैंने ये वाला विंडो लिया था, तो मेरा क्या हुआ था, एंड पॉइंटर यहाँ था, तो टोटल हमारी वेट वैल्यू आई, तो हमारा इनिशियल साइज़ 4 था। फिर मैंने देखा 8 जो मेरा है 7 से ग्रेटर है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर मैंने 0 पे इनिशियलाइज़ किया था। फिर मैंने स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ मूव किया, फिर मेरा स्टार्ट पॉइंटर यहाँ आया, तो हमारा सम की वैल्यू क्या हो गया, 3 + 1 + 2 जो होगी हमारी 3 1 4
6 होगी जो लेस दैन है, तो यहाँ पे लेस हुआ, तो फिर मैंने एंड को मूव किया, मेरा अब एंड पॉइंटर यहाँ आया। तो आप सम देखेंगे तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 आया, तो 10 ग्रेटर है, तो हम फिर अपने मिनिमम साइज़ के अपडेट किया, तो ये साइज़ 4 हुआ। तो अभी भी 4 है, तो साइज़ ग्रेटर है, तो हम स्टार्ट पॉइंटर को मूव करेंगे। तो मेरा यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर आया। अब मेरी सम क्या हुई, 1 + 2 + 4, 4 + 2 6 + 1 7, 7 है, 7 = टू है 3, तो ये साइज़ भी हमारा एक्सेप्टेबल है, तो हमने मिनिमम साइज़ को 3 को अपडेट यहाँ किया। फिर मैं स्टार्ट को यहाँ मूव करूँगा, क्योंकि हमारा अभी भी साइज़ ग्रेटर इक्वल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर को मूव किया। अब हमारा क्या होगा, साइज़ 4 + 2 होगा 6 होगा, तो 6 अगर लेस दैन है 7 से, तो ये कंसिडर नहीं होगा, हमारा ये मिनिमम साइज़ वाला जो वेरिएबल अपडेट नहीं होगा, तो फिर हम एंड पॉइंटर को यहाँ अपडेट आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा एंड पॉइंटर यहाँ पे आया, और हमारा वैल्यू क्या हुई, 4 + 2 6, 6 + 3 7 हुई। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये सेम साइज़ आया, तो हमारा ये अपडेट हुआ, तो 3, ये 3 साइज़ ही हो गया। फिर हमारा ये 7 जो है 7 वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मैंने मिस्टेक किया है, 4 + 2 6 हुआ, 6 + 3 9 हुआ, ओके 9 हुआ। तो 9 के लिए साइज़ 3 आया, तो मैंने 3 को अपडेट किया मिनिमम साइज़ को, तो यहाँ पे 3 अपडेट हो गया। फिर मैं देखा 9 जो मेरा है ग्रेटर है 7 से, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टार्ट पॉइंटर को मूव करूँगा, तो मेरा स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे आएगा, और एंड पॉइंटर जो मेरा है मूव नहीं होगा, तो वहीं पर आएगा। तो मैं देखूँगा क्या आप सम आया, तो 4 + 3 यहाँ पे 7 आया, तो 7 जो है मेरा = 7 है, और तो इसका साइज़ क्या होगा हमारे एंड माइनस स्टार, आई मीन एंड माइनस स्टार +1, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो हमारा 2 मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम 2 अपडेट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगी यह आंसर हो जाएगा हमारा। तो सेम अप्रोच हम कोड में लिखते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। इसको हम कोड में लिखते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर लिया जो मेरा 0 पे होगा, और मैंने एक एंड पॉइंटर ले लिया जो हमारा इनिशियली 0 पे होगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक सम वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं उस सम को स्टोर करते जाऊँगा उस विंडो के लिए। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊँगा एंड पॉइंटर पे। तो मैंने यहाँ पे एंड पॉइंटर पे एक लूप लगाया। एंड पॉइंटर कब तक लूप रन करेगा, जब तक हमारा ये एंड लास्ट इंडेक्स पे पहुँच ना जाए। तो हमारा वाइल लूप लगा दिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगा, मैं सम में अपने जो हमारा एंड पॉइंटर मूव करता रहेगा उसको हम उसके वेरिएबल के डेटा को उस इंडेक्स के डेटा को हम सम में ऐड करते जाएंगे। तो बेसिकली ये ऐड करते जाएगा, और जिस कंडीशन पे अगर हमारे सम की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर या इक्वल होती है किसके, टारगेट वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे क्या होगा, हमारा एक साइज़ एक हमें सब एरे मिलेगा। ये केस हमारा फुलफिल हुआ, हमें सब एरे का सम मिलेगा जो ग्रेटर देन टारगेट होगा। तो क्या करेंगे, हम उसके साइज़ को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ जो हमारा मिन साइज़ होगा, जो उसको मैं मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक आंसर मिला। तो हमने क्या करेंगे, अपने मिन साइज़ को अपडेट कर देंगे। मैं डॉट मिन करके मैंने यहाँ पे अपने मिन साइज़ को अपडेट किया। और हमारी साइज़ क्या होगी, साइज़ निकालने के लिए हमने जो हमारा एंड वेरिएबल है और स्टार्ट वेरिएबल है इसको यूज़ करेंगे। तो एंड माइनस स्टार्ट +1, तो इससे साइज आ जाएगा हमारा। इस तरह हम इसको अपडेट करते जाएंगे। और इसके साथ हम देखेंगे कि अगर ये सम की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पर हमने मिनिमम साइज़ निकाला। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि इस केस में, जैसे कि अगर ये साइज़ यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, हमारा जो एंड पॉइंटर है यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे होगा, तो हमारी जो टोटल सम की वैल्यू होगी कितनी होगी, 20 होगी। तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा जो मैंने अभी कोड में लिखा। तो ये चेक करेगा, ये 4 ले लिया। फिर मैं जो स्टार्ट पॉइंटर कब तक स्टार्ट पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंटर यहाँ था, अब स्टार्ट पॉइंटर यहाँ आएगा, तो विंडो की साइज़ रिड्यूस होगी। और रिड्यूस होने के साथ तो क्या होगा, हमारी जो सम की वैल्यू भी है ये भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि ये क्या होगा, अगर 19 ग्रेटर दैन है हमारा जो टारगेट है 15 के, तो हम साइज़ को अपडेट करते जाएंगे। तो सेम चीज़ मैं करूँगा, स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव करूँगा विंडो की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो मैं वाइल लूप लगाता हूँ क्योंकि हमें ये एक कंडीशन तक करनी है। तो मैं स्टार्ट को
कब तक हमें स्टार्ट पॉइंटर को मूव करना है, जब तक हमारा जो सम की वैल्यू है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू टारगेट होगा। ठीक है, तो हम अपनी सम की वैल्यू को ओके तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्टार्ट को अपने स्टार्ट पॉइंटर जो है उसको बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ स्टार्ट +1। ठीक है, तो एक विंडो की साइज़ हमारी रिड्यूस हुई। फिर हम क्या करेंगे, अपना साइज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने करेंट विंडो साइज़ ले लिया। तो करेंट विंडो साइज़ क्या होगी मेरी, एंड माइनस स्टार्ट +1, और हम मिनिमम साइज़ को अपडेट करते जाएंगे। मिनिमम साइज़ जो हमारा होगा मैथ डॉट मिन साइज़ और करेंट विंडो साइज़। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये वाइल लूप क्या करेगा, ये तब तक रन होगा जब तक ये हमारा कंडीशन फुलफिल होगा, सम हमारा जो होगा ग्रेटर देन होगा टारगेट के, और ये हमारे स्टार्ट पॉइंटर को हम मूव करते जाएंगे। और हम जितने भी बार मूव करेंगे विंडो को, उस विंडो का साइज़ निकालेंगे और अपने मिनिमम वाले जो साइज़ है उसको अपडेट करते जाएंगे। तो सेम लॉजिक जो मैंने बताया था वही उसी का कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, सेम मैनर में हम चेक करेंगे हमारा मिनिमम साइज़ अगर जैसे कि मैंने ब्रूट फोर्स बताया था, अगर मिनिमम साइज़ हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है, इसका मतलब वो अपडेट ही नहीं हुई, तो उसके हमें 0 रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमें मिनिमम साइज रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। ओके, आई गेस मैंने यहाँ पे एंड जो वेरिएबल है उसको अपडेट भी नहीं किया है, तो यहाँ पे हम इसको अपडेट कर लेते हैं क्योंकि हमारा एंड भी मूव होगा, तो एंड प्लस प्लस यहाँ कर लेता हूँ मैं। ओके, ये करेक्ट है। यहाँ पे सम प्लस नम्स आई लिया है मैंने। ओके, मैंने यहाँ पे आई गलती से ले लिया, यहाँ पे हमें एंड लेना है क्योंकि हमारा एंड वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ साइज़ को, जिससे क्लियर। ओके, मिन साइज़ यहाँ पे हमने एक वेरिएबल नेम गलत ले लिया है, तो मिन साइज लिया मैंने। ओके, टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, क्यों दे रहा है देखते हैं इसको। हमने क्या किया, ठीक है, इसको डायरन कर लेते हैं। हमारा सम 0 था इनिशियली, मिन साइज़ था हमारा, जो एंड की वैल्यू है स्टार्टिंग 0 है, नम्स डॉट लेन तक हमें रन किया, हमने सम कैलकुलेट किया। ओके, फिर हमने देखा कि अगर हमारे सम की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू टारगेट है तो हम क्या किया, हमने मिनिमम साइज़ को अपने अपडेट किया। फिर हमारा जो ये वाइल लूप है ये कब तक रन होगा, जब तक सम हमारा ग्रेटर होगा। हमने स्टार्ट को मूव किया। ओके, हमने सम की वैल्यू को रिड्यूस ही नहीं किया, एक्चुअली हमें सम की वैल्यू को भी रिड्यूस करनी है। तो सम माइनस क्या करेंगे हम, नम्स ऑफ स्टार्ट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमारा सम की वैल्यू 20 थी, फिर हमें सम की वैल्यू 19 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जो हमारा डेटा होगा उसको रिमूव करेंगे। तो मैंने वो रिमूव नहीं किया था, इसलिए वो क्या हो रहा था कि वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा था, और हमारा ये जो लूप है इन अनलिमिटेड टाइम रन हो रहा था, तो टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा। तो मैंने यहाँ पे सम को भी रिड्यूस किया अब। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे साइज़ 1 दे रहा है, बट हमारा जो साइज आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है, बट एक्सपेक्टेड 2 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम देखते हैं। ओके, हमारा ये मिन साइज़ जो निकाला हमने यहाँ पे एंड मैंने स्टार्ट किया। ओके, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे एंड लिया हमने, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, सम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो हम सम को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे 2 आउटपुट रॉन्ग आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है, मिन साइज निकाला है, और जब सम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो हमने सम की वैल्यू को रिड्यूस किया है, फिर इसके बाद हमने स्टार्ट को अपडेट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने रॉन्ग किया है, हमें स्टार्ट को अपडेट करने के बाद हमने मिनिमम साइज़ कैलकुलेट किया है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले हम मिन साइज़ को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम स्टार्ट को प्लस तो कर दिए, बट क्या पता उसके बाद ये जो हमारा जो सम की वैल्यू हो ये लेस देन हो, उसको रिमूव करने के बाद भी। तो इस केस में हमें क्या करना होगा,
हम इसको यहाँ अपडेट ना करके एक बार हमने मिन साइज़ कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे विंडो के साइज़ को। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारा अगर ये साइज़ 20 है, उसके बाद उसके जस्ट बाद ही हमने स्टार्ट पॉइंटर को मूव किया है, फिर उसके बाद चेक किया है। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल करता है तो हम साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ऐसे कि यहाँ पे पहले हमारा मिन साइज़ निकाला, फिर हमने चेक किया, अगर वो ग्रेटर है तो क्या करेंगे, हम सम को पहले रिड्यूस करेंगे, फिर मिन साइज़ निकालेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट को प्लस करेंगे। तो आई होप इट शुड रन। इसको रन किया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टेस्ट केस हमारे पास होते हैं। इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ये सबमिशन हो जाता है। इट इज़ टेकिंग 1 मिली सेकेंड एंड बीट्स 99.99 जावा यूजर्स। सो यहाँ पे देखते हैं हम इसको थोड़ा और क्लीन मैनर में सकते हैं कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, फिर वाइल लूप लगाया, तो हम इसी इफ कंडीशन को हटा कर डायरेक्ट वाइल लूप लगा सकते हैं। बट मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया था उस मैनर में इसे लिखा है जिससे आपको समझ में आए। तो इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारा जो ये एंड पॉइंटर है ये हमारा नम्स डॉट लेंथ के बराबर चल रहा है, तो टोटल हमारा जो इटरेशन है यहाँ पे एन इटरेशन है, और इसके अंदर जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट ऑपरेशन है। और जो हमारा ये वाइल लूप के अंदर सम वाला कंडीशन है ये हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा ये एंड पॉइंटर तक नहीं पहुंच जाता। क्योंकि हम यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर मेरा एंड पॉइंटर यहाँ पे है तो ये स्टार्ट पॉइंटर मूव करेगा कब तक मूव करेगा, जब तक ये कंडीशन जो है फुलफिल ना होती। कंडीशन तभी तक फुल होगी, मतलब इसके हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है कभी भी एंड पॉइंटर से क्रॉस नहीं होगा। तो बेसिकली ये बिग ऑफ एन ऑपरेशन ही है, क्योंकि हम हर एंड पॉइंटर के लिए स्टार्ट पॉइंटर को उस एंड पॉइंटर तक मूव कर रहे हैं, और जैसे ही ये हमारा ये कंडीशन फेल होता है फिर हम एंड पॉइंटर को मूव कर रहे हैं। हमारा एंड पॉइंटर एट द एंड लास्ट इंडेक्स तक रन हो रहा है। तो टोटल हमारा ये ओवरऑल एन इटरेशन है। तो यहाँ पे हम इसको बिग ऑफ एन ऑपरेशन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने वेरिएबल यूज़ किया है तो कांस्टेंट है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग ऑफ 1 होगी। तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग ऑफ एन होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1 होगी। तो आप इस तरह देख सकते हो कैसे हम ऑप्टिमाइज मैनर में इस प्रॉब्लम को सोच सकते हैं और कैसे लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम डेली ऐसे वीडियो डालते हैं और हर दिन एक कोड लेकर हम खुद उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज़ करके और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू गाइस।